Good morning to good morning student, and welcome to this video. Till now we have learnt about the functions used in Python, that are inbuilt functions, and you have also studied about some modules. As you know, functions help us to perform various repetitive tasks, right? So today we will learn about user defined functions, and user defined functions are basically the functions that a user or programmer defines himself during the program, right? And these are the functions which are created by programmer as per his own requirement. So first of all, we will learn how to write user defined functions. For that, we will move to Thony now. Here you can see this is an example in which we have declared a function called fun1, right? So whenever you are supposed to define a user defined function, what you are supposed to use is a keyword def. So whenever user defined function is required, we will use keyword def from leftmost column of the your Thony editor. Then we will type a name for the function. It can be any name, but you should remember the name should be a relevant one. For example, if you want to add two numbers, you can give add two number, right? Similarly, so for example, we have given this as function 1. Then we put two parentheses. So any identifier that follows with these two parentheses is known as a function or method in Python. This should be clear to you all, right? And when the function, any function is followed by this keyword def, that means it will be a user defined function. User defined functions are basically created as per the requirement of user, because there are many commonly used functions which are already declared in Python. They comes under standard library or different modules, right? But sometimes we need to have some specific function, right? For those we have to create our own functions, and such functions are known as user defined function. So what we are supposed to do, a keyword def followed by function name, then two parentheses, right, followed by a colon sign. जैसे आप फॉर लूप, वाइल लूप या इफ के आगे कोलन लगाते हैं, ऐसे ही फंक्शन जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे कोलन लगाते हैं, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो अब इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, राइट? अ फंक्शन बॉडी कैन हैव वन स्टेटमेंट और मोर देन वन स्टेटमेंट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन. So this part is known as function header. This is called function header. This is called body of function. We call this body of function, right? Then we have a main code. Main code means your actual program starts from here, right? So first suppose I have written as the first statement as print I am in main section. So this will print this message as it is, and this print goodbye will also print the message goodbye. But in between these two I have written function 1. This is the name of the function. So we are calling the function at this point in our main program, right? So what will happen whenever we call this function 1, it takes the control from this point to the calling function, that is this called function, that is function 1, and then it will execute all the statements written within the body of function.
तो अभी जैसे ही आपने इस फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से ट्रांसफर हो जाएगा और फंक्शन 1 में चला जाएगा और जो जो स्टेटमेंट होंगे उनको वहां पे एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, राइट, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है, यानी सबसे पहला स्टेटमेंट जो मेन का जो पहला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। और भले ही हमने फंक्शन इससे पहले डिफाइन किया है, लेकिन यहां इस फंक्शन को क्या एग्जीक्यूशन कब होगा, जब हम इस फंक्शन को एक्सप्लिसिटली यानी अलग से कॉल करेंगे। और कॉल करने का तरीका क्या है, आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और 2 ब्रैकेट लगाते हैं। तो आपने यहां लिखा फंक्शन 1 दिस, तो आपने इसको कॉल कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा तो पहला स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगा, यानी आपके पास आएगा आई एम इन मेन सेक्शन। दिस इज कॉल्ड मेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम एंड दैट इज सब प्रोग्राम और फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद आप जब ये प्रिंट हो जाएगा तो फिर आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से सीधा आपका जो कॉल्ड फंक्शन है जिसमें आपने कॉल किया जिस फंक्शन को, उसमें चला जाएगा और उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है और वो है हेलो, तो ये हेलो को प्रिंट करेगा और उसके बाद वापस कंट्रोल यहां आएगा और इससे आगे का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज गुड बाय। अब मैं इस प्रोग्राम को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, तो आप आउटपुट से आपको पता चल जाएगा कि जो सीक्वेंस मैंने बताया था उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुआ। देखिए जब आपने रन किया, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो आपको मिला आई एम इन मेन सेक्शन। उसके बाद आपने फंक्शन कॉल किया तो यहां से कंट्रोल चला गया इस फंक्शन 1 में और इसने यहां प्रिंट किया हेलो, तो हेलो आपको मिल गया। और उसके बाद कंट्रोल वापस यहां आया और इसने प्रिंट किया गुड बाय, ये हो गया। अगर सपोज मैं यहां पे एक स्टेटमेंट और लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल प्रिंट हाउ आर यू, तो अब आपके क्योंकि इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, तो जब फंक्शन कॉल करेंगे तो आई एम इन मेन सेक्शन के बाद हेलो भी प्रिंट होगा, फिर हाउ आर यू प्रिंट होगा और फिर गुड बाय प्रिंट होगा, वापस यहां आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आई एम इन मेन सेक्शन, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर हाउ आर यू प्रिंट हुआ और फिर गुड बाय प्रिंट हुआ। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड हाउ यू कैन कॉल दैट फंक्शन। यहां पे अगर फिर से मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन हेडर, इसको कहते हैं फंक्शन हेडर, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये आपका कहलाता है फंक्शन की बॉडी, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ फंक्शन। और इस पूरे को हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, इसको कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। यानी फंक्शन डेफिनेशन में उसका हेडर भी आता है फंक्शन का और बॉडी, दोनों को मिला के फंक्शन डेफिनेशन। केवल इसको हम कहेंगे फंक्शन हेडर और केवल इसको हम कहेंगे फंक्शन की बॉडी। उसके ये तो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट। और फंक्शन हमेशा जो मेन प्रोग्राम है उसके ऊपर कहीं डिक्लेयर करते हैं हम, राइट। लेकिन प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। अब एक फंक्शन को आपने जब कॉल किया तो उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, राइट। किसी प्रोग्राम के अंदर आपने कोई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है और उसको कहीं पे कॉल नहीं कर रहे हैं तो उस फंक्शन का कोई यूज नहीं है फिर, राइट। आपने फंक्शन बना लिया, उसके बाद उसको कहीं पे कॉल कर रहे हैं आप, तो आप उसको तभी फंक्शन की जो यूज में आएगा, राइट। इसी के साथ एक और दूसरा कोड मैं आपको दिखाता हूं। किसी भी फंक्शन को, यूजर डिफाइंड फंक्शन को, सेम प्रोग्राम में किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम किसी प्रोग्राम में या प्रोग्राम के किसी पार्ट में एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा ये फंक्शन डेफ फंक्शन 1, इसमें आपने 2 स्टेटमेंट दिए हैं बॉडी के अंदर, प्रिंट हेलो और हाउ आर यू, राइट। अब आपने यहाँ पे कहा प्रिंट आई एम इन मेन सेक्शन। आपने पहले एक बार फंक्शन कॉल किया, मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं, आपने रन किया तो ये तो जैसे आपने पहले किया था सेम वही आउटपुट आ जाएगा, यानी जो पिछला वाला प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन आपको एक से ज्यादा जगह पे
कॉल करना है। ऐसी जरूरत हो सकती है कि एक ही फंक्शन, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, पावर फंक्शन है। अब कोई प्रोग्राम है उसके अंदर पावर फंक्शन आपको 10 जगह यूज करना है, तो आपको हर बार पावर फंक्शन के लिए कोडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट पावर फंक्शन को उन 10 जगहों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने कहा फंक्शन 1 को एक बार कॉल किया और फिर दोबारा कॉल कर दिया। तो इसका मतलब पहले ये प्रिंट होगा आई एम इन मेन सेक्शन, उसके बाद फंक्शन 1 से कंट्रोल जाएगा यहाँ, प्रिंट करेगा हेलो हाउ आर यू, फिर वापस आएगा कंट्रोल यहाँ, और फिर से आपने फंक्शन 1 कॉल किया तो ये दोबारा फंक्शन 1 में जाएगा, ये प्रिंट करेगा हेलो हाउ आर यू, और फिर वापस यहाँ आएगा और तब प्रिंट करेगा गुड बाय। यानी अब जो आउटपुट आपके पास आएगा उसमें जो फंक्शन की बॉडी है 2 बार एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आपने 2 अलग अलग जगह पे फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन मोर देन वंस। और ये जो फीचर है कि आप फंक्शन को एक से ज्यादा बार कॉल कर रहे हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, इसका मतलब है आप जो कोड है उसकी रीयूजेबिलिटी, तो फंक्शन का एक एडवांटेज भी है कि कोड में जो रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यानी एक ही कोड को आपने, जैसे प्रिंट हेलो हाउ आर यू को दो बार कॉल किया तो आपने उसको रीयूज कर लिया। ठीक है, तो यहां पे तो ये केवल 2 ही स्टेटमेंट का फंक्शन था। अगर माना ये 10 लाइन का स्टेटमेंट होता, बॉडी होती है इसकी फंक्शन की, तो वो अगर अदरवाइज अगर आपको 2 जगह पे चाहिए होता तो आपको 10 लाइन एक जगह लिखनी पड़ती है, 10 लाइन दूसरी जगह, अगर हम फंक्शन यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन फंक्शन यूज करने के कारण आपने एक बार फंक्शन किया और उसको 2 अलग अलग जगह पे यूज कर लिया, तो आपका जो रिपीटिव टास्क है वो बच गया, एक से ज्यादा बार आपको वो लाइंस नहीं लिखनी पड़ी, और साथ में आपका प्रोग्राम की जो लेंथ है वो भी शॉर्ट हो गई। अदरवाइज अगर सपोज मैं ये फंक्शन नहीं बनाता तो मुझे एक बार यहाँ पे प्रिंट हेलो लिखना पड़ता, फिर प्रिंट हाउ आर यू, और फिर दूसरी बार दोबारा लिखना पड़ता प्रिंट हेलो प्रिंट हो, तो 4 लाइन हो जाती। अभी वो काम हमारा 2 ही लाइन में हो गया, तो इससे प्रोग्राम की लेंथ भी शॉर्ट हो जाती फंक्शन से। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसको 2 बार एग्जीक्यूट किया तो आपका आ रहा आई एम इन मेन आउटपुट में, और फिर हेलो हाउ आर यू एक बार आया क्योंकि ये फंक्शन जब कॉल हुआ, अगेन हेलो हाउ आर यू दूसरी बार आया क्योंकि एक बार और आपने फंक्शन को कॉल किया, और फिर गुड बाय आया। ये अगर मैं गुड बाय के नीचे एक बार और कॉल कर देता हूं तो तीसरी बार हेलो हाउ आर यू आ जाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि आपका जो फंक्शन है वो हमें हेल्प करते हैं प्रोग्राम की लेंथ को शॉर्टन करने में, साथ ही जो रिपीटिव टास्क है उसको ओवरकम करने में। तीसरा है आप एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं। अभी आपने पीछे देखा था हमने एक फंक्शन बनाया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी होती है हमें एक से ज्यादा फंक्शन बनाने पड़ सकते हैं, तो आप ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने फंक्शन बना सकते हैं। एज यू रिक्वायर यू मे क्रिएट अ नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने 2 फंक्शन इसमें बनाए, एक फंक्शन 1 और दूसरा फंक्शन 2। राइट, फंक्शन 1 में लिखा हेलो हाउ आर यू और फंक्शन 2 में लिखा वेलकम टू फंक्शन 2। ठीक, अब आपने यहाँ पे मेन कोड में लिखा आई एम इन मेन फंक्शन। अब आपने पहला फंक्शन कॉल किया फंक्शन 1 और उसके बाद फंक्शन 2 दूसरा फंक्शन कॉल किया। तो जब फंक्शन 1 कॉल किया कंट्रोल यहां से जाएगा यहाँ और फंक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, तो आपको पास आ गया हेलो यू आर इन फंक्शन 1। और वापस जब कंट्रोल यहाँ आएगा फिर से फंक्शन 2 कॉल हुआ तो फिर से ये फंक्शन 2 में जाएगा और प्रिंट करेगा वेलकम टू फंक्शन 2, और फिर कंट्रोल यहाँ आया और उसके बाद प्रिंट किया गुड बाय। आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। सो ये आया पहला आई एम इन मेन फंक्शन, फिर हेलो यू आर इन फंक्शन 1 बिकॉज वी हैव कॉल्ड फंक्शन 1 फर्स्ट एंड देन वेलकम टू फंक्शन 2। अब एक चीज और नोट करनी है यहाँ पे कि आपने कितने भी फंक्शन बनाए हो, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, अब इनमें से कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है तो उसके लिए कोई सीक्वेंस नहीं होता है। किसी भी फंक्शन को आप पहले कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन 1 को कॉल करने के बजाय आप चाहे तो फंक्शन 2 को पहले कॉल कर सकते हैं, फंक्शन 1 को बाद में कर सकते हैं, एक फंक्शन को 10 बार कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन को 5 बार कर सकते हैं और किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको फंक्शन 2 को पहले कॉल कर दिया तो अब आपका फंक्शन 2 पहले कॉल हो रहा है, तो वेलकम टू फंक्शन 2 पहले आया और फिर आया फंक्शन 1 जो है हेलो हाउ आर यू इन फंक्शन 1। सो दिस इज how you can make
more than one user defined function in the same program. अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम अभी इसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। इधर आते हैं इसमें, यस, ये वाला प्रोग्राम देखिए। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर हम एक फंक्शन आपने बनाया है, एक फंक्शन आपने बनाया है किस नाम से, लाइन नाम से। मैंने इसको कहा है फंक्शन विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विदाउट पैरामीटर का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जिसमें हम इन पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं देते हैं, एम्प्टी पैरेंथेसिस होते हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर। और विद पैरामीटर वाले फंक्शन कौन से थे, जहां पे हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं, यानी कोई आइडेंटिफायर देते हैं इसके अंदर, ठीक है, या वेरिएबल नेम देते हैं। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाया आपने लाइन। अब नाम से मैंने इसको लाइन क्यों दिया, क्योंकि एक लाइन ड्रॉ करेगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फंक्शन को ऐसे नाम नहीं देने, फंक्शन 1, फंक्शन 2 या XYZ, आपको रिलेवेंट नाम देना है, ताकि फंक्शन, जैसे पावर फंक्शन है तो आपको नाम से पता चलता है POW, पावर निकालने के लिए। SQRT फंक्शन है तो SQRT फंक्शन, ऐसे ही लाइन के लिए बना रहे हैं हम, तो आपने इसको नाम दिया है लाइन। अब आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या मेथड है, आप एक लूप चला लीजिए और सपोज 20 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे आपने कहा प्रिंट स्टार एंड, प्रिंट स्टार। तो इससे क्या होगा, ये स्टार इस लूप के अंदर मैंने दिया है तो 20 टाइम्स प्रिंट होगा, और ये एंड क्या करेगा, ये उसको सेम लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। और जब स्टार 20 टाइम्स सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपने लाइन चेंज कर देनी है। अदरवाइज क्या होगा कि आगे का जो आउटपुट है वो सेम लाइन में आ जाएगा, तो लाइन ब्रेक करना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अभी मैंने ये प्रोग्राम मेन लिखा है, इसमें मैंने लिखा प्रिंट अजय, प्रिंट दिस और प्रिंट दिस, ठीक। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो रन किया, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया, तो इसका एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं इस लाइन फंक्शन का, और आपको सिंपली जो मेन में आपने लिखा है केवल वही आउटपुट में दिखाई देगा। तो मेन में आपने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, तो आपको अजय सिंह, 5 न्यू कैंट रोड और पिन, ये तीनों अलग अलग लाइंस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है, अब मैं यहां पे लिखता हूं लाइन, यानी आपने यहां पे लाइन फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जैसे ही आपने लाइन फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल यहां जाएगा और 20 टाइम्स स्टार प्रिंट करके फिर वापस आएगा, और फिर नीचे ये लाइन प्रिंट होगी और ये लाइन प्रिंट होगी। आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, तो सेम ये लाइन प्रिंट हुई। अब ये मुझे सपोज इसके नीचे भी चाहिए तो मैं यहां भी लाइन कर दूंगा, और इसके नीचे भी चाहिए तो यहां भी कर दूंगा। यानी अब हर नाम के बाद एक लाइन आएगी, न्यू कैंट, कई बार इस तरह की फॉर्मेटिंग की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि आपने एक ही फंक्शन को 3 अलग अलग जगहों पे कॉल किया। अब देखिए, अगर सपोज मैं ये फंक्शन नहीं बनाता इसके लिए और मुझे सेम यही चीज चाहिए होती, तो हमें क्या करना होता, यहां पे फॉर आई इन रेंज दिस और ये और प्रिंट एक बार लिखना पड़ता, फिर यहां दूसरी बार, फिर यहां तीसरी बार, और हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी आपसे हो जाती, ठीक है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, यानी रिपीटिशन न हो स्टेटमेंट्स का, तो आपने इसको एक जगह डिफाइन कर दिया फंक्शन बना के, और उस फंक्शन को आपने 3 अलग अलग जगहों पे कॉल कर लिया। तो ये आपकी सुविधा के लिए, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं सपोज, तो रन करने पे आपको दिखेगा कि देखिए सबके नीचे लाइन इसने ड्रॉ कर दी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज यूजर डिफाइंड फंक्शन and then you can call them at different positions as per your requirement in a program, ठीक है। इसी प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन है, वो क्या है, इसमें हम एक फंक्शन विद पैरामीटर, यहां पे अब हम एक पैरामीटर भी दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर कुछ वेरिएबल नेम लिखते हैं, उनको हम कहते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर, और उससे पहले वाला जहां पे ब्लैंक था उसको कहते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें सेम प्रोग्राम है, मैंने यहाँ एक CHR लिया
और यहां लिखा फॉर आई इन रेंज 20। अब स्टार प्रिंट करने के बजाय मैंने क्या किया, CHR प्रिंट कर दिया। ठीक, CHR प्रिंट करने से क्या होगा कि जो भी इस कैरेक्टर फॉर्म में होगा, इस CHR के अंदर जो भी चीज होगा वो यहां प्रिंट हो जाएगा। स्टार होगा तो स्टार प्रिंट होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, हैश का साइन होगा तो हैश का साइन होगा। तो अब यहां पे इससे पहले क्या कर रहे थे हम, यहां पे स्टार प्रिंट कर रहे थे। तो जितनी बार हम इस फंक्शन को पहली बार कॉल किया तो स्टार प्रिंट हुआ, दूसरी बार किया तो स्टार प्रिंट हुआ, तीसरी बार किया तो स्टार प्रिंट हुआ। लेकिन यहां पे अब क्या है, अब बहुत ध्यान से आपने ये देखना है, क्योंकि अब हमने पैरामीटर पास कर दिया इसमें। तो अब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को कॉल करने में पहले तो हम लिखते थे लाइन और 2 ब्रैकेट। अब क्योंकि इसके अंदर एक पैरामीटर भी है, और वो कैसा पैरामीटर है, कैरेक्टर टाइप, तो आप यहां से एक सिंबल भी भेजेंगे कि किस सिंबल से आपको लाइन प्रिंट करनी है। तो अब यहां पे क्या होगा, इसका मतलब इस फंक्शन को अब हम सिंपल लाइन और 2 ब्रैकेट के बिना के साथ कॉपी नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते। मैं जैसे करके दिखाता हूं आपको। मैंने ये किया तो अब मैंने खाली दे दिया, रन किया, एरर आएगा। देखिए आया ना एरर, टाइप एरर। ये जो लाइन है मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट CHR, वो कह रहा है कि इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो इसमें आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, और वो वैल्यू मैंने क्या दी, स्टार। क्यों दिया स्टार, क्योंकि मैं चाहता था कि अजय के नीचे जो लाइन प्रिंट हो वो स्टार से प्रिंट हो, न्यू कैंट रोड के नीचे जो लाइन हो वो हैश से प्रिंट हो, और यहां पे जो लाइन हो वो @ से प्रिंट हो। तो अब होगा क्या, जैसे ही आपने इसको कॉल किया तो पहले तो अजय सिंह प्रिंट हुआ, फिर अब ये स्टार जो है वो इसमें चला जाएगा, CHR। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपने कर दिया CHR इक्वल टू स्टार, यानी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग एस्ट्रिक साइन। ठीक है, तो CHR में स्टार हो गया। तो जब आपने कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, और ये अपने साथ क्या लेके आया, स्टार को लेके आया, जो इसने CHR में स्टोर कर दिया। अब आपने CHR यानी स्टार को प्रिंट किया कितनी बार, 20 टाइम्स। तो इसके नीचे 20 लाइंस आ जाएंगी स्टार। फिर वापस कंट्रोल यहां चला जाएगा। अब आपका हुआ 5 न्यू कैंट रोड, और इसके बाद आपने प्रिंट किया, लाइन कॉल किया हैश साइन से, तो ये यहां गया CHR में, अब हैश आया और इसने प्रिंट किया 20 टाइम हैश, यानी एक लाइन प्रिंट की हैश से। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, @ से प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने एक ही फंक्शन को अलग अलग वैल्यू देके कॉल किया। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ कॉल किया। तो अब आपके पास आप आउटपुट देख सकते हैं। पहली बार आपने स्टार पास किया था तो स्टार से हुआ, दूसरी बार इससे, तीसरी बार इससे। आप कोई दूसरा सिंबल यूज करना चाहते हैं, माना यहाँ पे हैश नहीं यूज करके आप डॉलर का साइन यूज करना चाहते हैं या परसेंटेज का, आप परसेंटेज का साइन यूज कर सकते हैं। रन किया आपने, अब आपको जो लाइन मिलेगी वो परसेंटेज से मिलेगी, चेक कर सकते हैं आप। तो ये कुछ प्रोग्राम थे जिसमें आपको बताया गया कि किस तरह से आप यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं और उनको कॉल कैसे किया जाता है। तो होप आप इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, और अब आप इनको थोनी के अंदर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्योंकि आगे का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है। इनकी प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आगे की चीज़ें समझने में आपको आसानी होगी। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिए और सिंसियरली इनको प्रैक्टिस कीजिए आप अपने कंप्यूटर के ऊपर। थैंक यू वेरी